Dear students, just I am going to teach you biology for class 9. In class 9, the chapter Fundamental Units of the Life. Today I will teach you the nucleus, its structure and function. आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको केंद्रक, उसकी बनावट और उसके क्या कार्य हैं उनका उल्लेख करने जा रहे हैं. Yes, the nucleus. What is the nucleus? Nucleus is a dense protoplasmic body that contains hereditary informations for controlling the cell activities as well as for the transfer to the next generation. न्यूक्लियस एक डेंस साइटोप्लाज्मिक बॉडी है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रखता है, सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और वह कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने का काम करता है. इट इज़ द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर. ये सबसे बड़ा सेल का स्ट्रक्चर है विच इज ओवल और स्फेरिकल इन आउटलाइन. न्यूक्लियस लाइज इन मीडियम और सेंट्रल पोजीशन इन एनिमल सेल एंड यंग प्लांट सेल. इन एनिमल सेल और यंग प्लांट सेल में न्यूक्लियस बीचों बीच सेंट्रली लोकेटेड होता है. बट इन मैच्योर प्लांट सेल द न्यूक्लियस लाइज towards the periphery due to the formation of the large central vacuoles. जबकि ये मैच्योर प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ स्थित होता है क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है. In this way, there is the question asked what is the position of the nucleus in cell. In animal cell, it is centrally located, while in mature plant cell, it is lies towards the periphery due to the formation of the central vacuoles. Nucleus and the other structures are differentiated in the cell by staining them with the iodine, safranin and methylene blue. These iodine, safranin or methylene blue, these are the names of the stain, and that help in that because they give the color when the nucleus or cell is dipped inside these stains, and that is why they are differentiated in the cell. Now the nucleus is made up of here some parts or following parts, just like here this is the nuclear membrane or nuclear envelope. This is the karyolimb or nucleoplasm. This is nucleolus, and just here this is endoplasmic reticulum. It is rough due to the presence of these ribosomes. That is why it is generally known as RER, rough endoplasmic reticulum. Ribosomes here, and there is the pores, and name of this pore is the nuclear pore, and inside it there is a thread like structure, and this is generally known as the chromatin network. Now go in detail about the structure of this nucleus. The main part of the nucleus is just the first nuclear envelope. Nuclear envelope is double membrane covering.
दोहरा मेम्ब्रेन का कवर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप भी, विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन कवर है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। इट इज़ परफोरेटेड बाय द सेवरल न्यूक्लियर पोर्स। बहुत सारे न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, जस्ट आई हैव shown in the diagram. The nuclear pores allow the exchange of materials between the nucleus and cytoplasm. Sometimes question arises in the student's mind, why these nuclear pores are there? What is the function of nuclear pores? Nuclear pores allow the exchange of materials between nucleus and cytoplasm. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप इज यूजुअली कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर इन्वेलप है, बाहर का कवर मेम्ब्रेन, वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ भी हो सकते हैं। जब रफ होते हैं, रफ एंड इट्स रफनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स, तब उसको बोलते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेन राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, देन दिस इज जनरली नोन एज द SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड जो आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और अदर नेम ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म इज न्यूक्लियर सैप। इट इज द कलरलेस डेंस सैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला कलरलेस डेंस सैप है। इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर क्रोमेटिन जो धागे की तरह संरचना है और न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जो कि राउंड शेप स्ट्रक्चर है पाए जाते हैं। अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस का। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज़ नियरली द राउंडेड स्ट्रक्चर, ये लगभग गोलाकार संरचना है, एंड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इन सर्टेन केसेज ये न्यूक्लियस में है मोर देन वन न्यूक्लियोलस। जनरली न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन कुछ केसेज में एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। न्यूक्लियस को जनरली हिंदी में बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को केंद्रिका और न्यूक्लियस को केंद्रक। तो हियर न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस किसी मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं बंधा होता है, जबकि न्यूक्लियस में जस्ट हमने पढ़ा कि इसमें डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। इट इज रिच इन RNA, ये इसमें RNA होता है और प्रोटीन। इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन। अब राइबोसोम्स फॉर्मेशन का ये साइट होता है, यानी यहाँ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स? राइबोसोम इज हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। ये राइबोसोम्स मदद करते हैं प्रोटीन के निर्माण में साइटोप्लाज्म के अंदर। अब नाउ द लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज द क्रोमेटिन मटेरियल। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरविंड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? धागे की तरह संरचना, एक दूसरे से लिपटी हुई
and they generally made up of the DNA and protein. DNA और प्रोटीन ये दोनों की बनी हुई क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं. But when the cell is ready to divide, or in other words we can say during cell division, the chromatin becomes highly condensed. कोशिका विभाजन के समय एक क्रोमेटिन मटेरियल बहुत कंडेंस होकर, संघनित होकर ठीक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोजोम्स. तो क्रोमोजोम्स, when chromosomes are formed, when cell is ready to divide, or in the other word we can say during cell division, chromatin material becomes highly condensed, thick and rod like structure and form the chromosomes. Chromosomes carry and help transfer information for inheritance characters from the parents to their next generation. क्रोमोजोम्स बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. बहुत सा हम देखते हैं कि कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं. इन पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को हमारे अंदर या पेरेंट्स की संतानों के अंदर लाने का काम कौन करता है? तो ये क्रोमोजोम्स करते हैं, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनीज, और फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर daughters and sons. Yes, the chromosomes are made up of DNA molecules and proteins. क्रोमोजोम्स जनरली डीएनए और मॉलिक्यूल्स के डीएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन के बने होते हैं. बट देयर इज क्वेश्चन अराइजेज इन स्टूडेंट्स माइंड कि डीएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के जब क्रोमोजोम्स बने होते हैं तो आउट ऑफ बोथ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, in which genetic information is contained, DNA molecules or the proteins. Generally the genetic information is actually contained in DNA, that is deoxyribose nucleic acid segments of the DNA function as the genes. ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरली डीएनए के अंदर निहित होता है, और डीएनए के सेगमेंट को हम जीन्स कहते हैं. एंड जीन्स आर अरेंज इन ए लीनियर फैशन ओवर डीएनए और क्रोमोजोम्स. जीन्स जनरली अरेंज होते हैं लीनियर फैशन पर, डीएनए या क्रोमोजोम्स पर. They contain all the informations necessary for functioning, growth and reproduction of not only the cell but also of the whole organism. Means ये क्रोमोजोम्स क्या रखते हैं? कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. केवल सेल के लिए नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए. देन हाउ वी कैन डिफाइन द जीन? ए जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए और क्रोमोजोम्स दैट कैरीज हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर वन और मोर फंक्शंस. इस तरह हम जीन को परिभाषित कर सकते हैं कि ये डीएनए या क्रोमोजोम्स का फंक्शनल यूनिट है जो क्या करता है? हेरेडिटरी इंफॉर्मेशंस को ढोने का काम करता है, एक या अधिक कामों के लिए. नाउ वी कम टू द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. There are so many functions. Just I will give you the important function of the
न्यूक्लियस. फर्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जस्ट अर्लियर टोल्ड यू द न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. न्यूक्लियस सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, केवल नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो द होल ऑर्गेनिज्म. सो इन दिस वे it is the important function of the nucleus. Second is the control center. Nucleus function as the control center of the cell because it controls the cell metabolism and cell activities. Means जो केंद्रक होता है सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं या सेल एक्टिविटीज होती हैं उनको नियंत्रण करने का काम करता है. तो हम कह सकते हैं इट इज़ द कंट्रोल सेंटर. थर्ड इज द राइबोसोम्स. जनरली द राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस and nucleolus is the part of the nucleus and this ribosomes is responsible for formation of the protein synthesis. Next is the division. During division of the nucleus is essential for cell division. Means सेल डिवीजन के लिए ये आवश्यक है न्यूक्लियस का डिवीजन होना. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. सेल तभी डिवाइड होंगे या उनमें रिप्रोडक्शन होगा जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. नेक्स्ट इज द वेरिएशन. Variations, reshuffling of the chromosomes and changes in genes produce the variations. क्रोमोजोम का रिशफलिंग और जीन में चेंजेस ये क्या करते हैं? दैट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस. एंड एट लास्ट आफ्टर सीइंग एंड स्टडिंग द वीडियोज आई विल गिव यू द होमवर्क. And this is very important homework. You will do it carefully, and before doing it carefully you have to see the videos carefully. Then you will easily solve this homework. Explain the structure of the nucleus with the help of diagram and write the function of nucleus. This is all about today from my sides.